हाय गाइस, सो माय नेम इज उत्कर। भाग जाए से, अगर ऐसे हो इस तरह की बात करते हो तो सुधर जाओ, या तो ये कोर्स देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इट इज़ नॉट फॉर प्रेटेंशियस पीपल, इट इज़ ओनली फॉर एम्पैथेटिक एंड एम्बिशियस पीपल, ठीक है। तो शुरू करते हैं। हेलो हेलो, so I'm Utkarsh Shrestha and you are in the episode 2 of Baby God of UX series, in which we are understanding how to make our end-to-end first UX project, ठीक है। So design thinking की हमने बात की थी, which contains understand, research analysis, define, ideate, design and test. You can go to episode 0 and learn more about it. So episode 2 will mostly be about understand. But since understand is a very large topic, I have kind of divided it into 4 or 5 parts, 2A, 2B, 2C, 2D. That would be easily consumable और 5-5 मिनट के वीडियो रहेंगे तो आराम से देख लोगे, ठीक है। So we'll start with understand, and this video is episode 2A of Baby God of UX series. That is, in understand we will start with understanding the problem statement with 5W1H method, ठीक है। So you are in the Baby God of series, you are the baby gods, I am Utkarsh Shrestha and this is God of UX. शुरू करें। Baby God of UX. Attack hit up on my robot. We talked about how to write a problem statement, ठीक है। And so whenever you start with a problem statement or a PRD, ठीक है, the first thing that comes into your mind are questions, ठीक है। ये यूज़र है तो कौन है, ठीक है। ये who am I designing for, ठीक है। Who is this user? Suppose that you are designing for say students, ठीक है। So even though you are a student, you might not know about the students, ठीक है। Who are the students of Bangalore, ठीक है। If you are designing something for the students of Bangalore, say who are the students of Bangalore, ठीक है। How many students live in Bangalore? What are the topmost college that these students go into, ठीक है। Who do we call students, ठीक है। Where do these students party? How much money do they get from their parents, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। एंड वेन एवर यू आर स्टार्टिंग विथ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यू नीड टू गेट अ होल व्यू ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इसीलिए वी यूज 5W1H मेथड, ठीक है। सो जितने भी क्वेश्चंस हैं, टू write them down or to have a clarity that what actually are the questions that we are trying to find answers to, that would make our understanding about the problem statement better. तो उसके लिए स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में क्वेश्चंस की ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए we use 5W1H method. Even though I told you that take a problem statement, those users you are in close proximity with, even then you will not be knowing more about the users. इसीलिए don't be pretentious, don't be empathetic. कोई भी क्वेश्चन छोटा नहीं होता है, ठीक है। सो जब आप स्टूडेंट्स के बारे में और जानना चाहोगे तो आप बहुत बड़ी लेयर अंडरस्टैंड करोगे, ठीक है। सपोज यू आर डिजाइनिंग फॉर अ पिजन, ठीक है। सो यू, अगर तुम्हारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अ पिजन, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट व्हेन यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पिजन, देन तुम्हें पिजन के बारे में सब पता होना चाहिए, ठीक है। तुम पिजन क्या होता है, उसके 2 पंख होते हैं, एक शरीर होता है, एक बीक होती है। पिजन का साइंटिफिक नेम क्या होता है? पिजन कितना ऊपर उड़ सकता है, पिजन कितना दूर उड़ सकता है, पिजन की फैमिली में कितने लोग हैं, पिजन किससे किससे बात करता है, पिजन मेरी बालकनी के ऊपर ही क्यों पूप करता है, ठीक है। इन सब की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। इवन
आप स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हो जो आप हो तब भी, ठीक है, आप अपने जैसों के लिए बना रहे हो, अपने लिए नहीं। इसलिए लेट गो ऑफ द एजम्पशंस एंड राइट ईच एंड एवरी प्रॉब्लम दैट कम्स इनटू योर माइंड, ठीक है। सो दैट हेल्प्स, सो इन दैट हेल्प्स 5W1H स्टेटमेंट। 5W1H स्टेटमेंट क्या है? Is nothing other than all these parameters of the questions in which we write, ठीक है। सबसे पहले because we are making a user centered design, so सबसे पहला क्वेश्चन who, कौन, किसके लिए, user, what, why, when, where, how, ठीक है। सो ये सारी की सारी क्लैरिटी अपने पास होनी चाहिए टू गेट द ऑल राउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। हम किसके लिए बना रहे हैं, हम क्या बना रहे हैं, हम क्यों बना रहे हैं, हम वो टाइम क्या है, वो जगह क्या है, एंड कैसे, ठीक है। तो हु, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सब के सब क्वेश्चंस लिख डालो। डोंट थिंक ऑफ एट दिस स्टेज कि उसके आंसर्स कैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ठीक है, बट राइट डाउन द क्वेश्चंस, ठीक है, जितने भी आए, ठीक है। एंड रिमाइंडिंग यू, दीज आर नॉट क्वेश्चनेयर्स, दिस विल हेल्प यू मेक रिसर्च क्वेश्चंस, ठीक है। दिस विल एक्ट एज अ लाइब्रेरी टू व्हाट यू आर ट्राइंग टू फाइंड आंसर्स टू। Questionnaire is something that we directly ask the user. Questions, research questions are something that is our library, है ना, in which we are trying to find out कि हमारे आंसर्स क्या हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे, सपोज कि यू वांट टू नो व्हाट इज द रूटीन ऑफ अ चाइल्ड्स डिनर, या व्हाट इज द डाइट रूटीन ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ये तुम्हें जानना है। रिसर्च क्वेश्चन में तुम्हारे व्हाट वाले में निकला कि ये निकला, ठीक है। नाउ व्हेन यू विल फ्रेम अ रिसर्च क्वेश्चन या क्वेश्चनेयर, सॉरी, व्हेन यू विल फ्रेम अ क्वेश्चनेयर, ठीक है, सो आप डायरेक्टली नहीं पूछ सकते हो चाइल्ड से कि बेटे आपका रूटीन क्या है, ठीक है। पहले तो वो चाइल्ड है वो भूल जाता है ना, उसकी मेमोरी रिकॉल इतनी नहीं है अभी, ठीक है। सो बायस हो जाएगा। उनके मम्मी पापा से पूछोगे तो वो बायस हो जाएंगे, नहीं हम तो बैलेंस डाइट देते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। तो आप मे बी एथनोग्राफिक रिसर्च करोगे, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च कर लोगे, ठीक है, टू ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस रिसर्च क्वेश्चन, ठीक है। दीज रिसर्च क्वेश्चंस आर लाइक एन एग्जॉस्टिव लिस्ट। आपको सबके आंसर नहीं जानने होते हैं और आपको कल इनके भी आंसर नहीं जानने होते हैं, ठीक है, बट इट हेल्प्स एज अ गाइड कि आप किसके बारे में वो क्वेश्चंस क्या हैं जिनके आप आंसर फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो थ्रू रिसर्च, ठीक है। उससे फिर आपका सेकेंडरी फॉर्म होता है, फिर थोड़ा डेवलप होकर प्राइमरी फॉर्म होता है, ठीक है। सो सबसे पहले टू स्टार्ट दिस मेथड, सपोज इफ दिस इज अवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ऑफिस कम्यूटर्स नीड नियर बाय ट्रांसपोर्ट ऑप्शन बिकॉज लॉन्ग वॉक्स वेस्ट टाइम एंड एनर्जी। इफ सपोज दिस इज अवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सो सबसे पहले जितने भी कीवर्ड्स हैं वो अंडरलाइन कर लोगे। ऑफिस कम्यूटर्स हो गया, नियर बाय ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस हो गया, लॉन्ग वॉक्स, वेस्ट टाइम, वेस्ट एनर्जी, वेस्ट टाइम, वेस्ट एनर्जी, ठीक है। फिर इसको तुम स्टिकी नोट में एक जगह लिख लोगे। सो बिफोर फ्रेमिंग द क्वेश्चन, बिफोर ब्रेनस्टॉर्मिंग अपॉन द स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस लिस्ट बाय यूजिंग 5W1H मेथड, आप जो है ये सारे ये लिख लोगे, सो दैट आपके दिमाग में हमेशा रहे। ये स्टिकी नोट या फिर कहीं पे लिख के ये हमेशा सामने रखना, सो दैट यू नो कि आप किसके लिए who 5W1H लगा रहे हो। देन सबसे पहले यू राइट who एंड देन स्टार्ट राइटिंग क्वेश्चंस अबाउट दैट, ठीक है। Who are the office commuters walking long distance daily? Who struggles most with last mile connectivity? Who depends on public transport for work travel? इस तरीके से गो क्रेजी। कोई भी क्वेश्चन छोटा नहीं होता, कोई भी क्वेश्चन बड़ा नहीं होता, जितने क्वेश्चन लिख पाओ लिख दो, ठीक है। राइट एज मैनी क्वेश्चन एज यू वांट, 100, 200, 1000, कितने भी, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े लिखते जाओ, ठीक है। छोटे से छोटे शुरू करो, देन प्रोग्रेसिव इंक्रीमेंट होता है, एंड देन यू काइंड ऑफ स्टार्ट राइटिंग मैनी क्वेश्चन, ठीक है। एंड सब कुछ समझने की कोशिश करो। वही बोलता, छोटे से छोटा क्वेश्चन बट डीपर से डीपर अंडरस्टैंडिंग इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव। सो जितने भी क्वेश्चन हो पाए लिख दो, ठीक है। वाई के लिए भी सेम, व्हाट के लिए भी सेम,
व्हेन के लिए, ठीक है, मोस्टली जो शुरुआत के डब्ल्यूज हैं उनके लिए आपके पास क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, व्हेन एंड वेयर में थोड़े कम आते हैं, एंड देन हाउ, ठीक है। सो इस तरीके से वी स्टार्ट विथ अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, वी राइट what all questions are coming into our mind, ठीक है, and this is how we start with understanding the problem statement that we have in our mind, ठीक है। अब जब भी तुम्हें कभी भी जहां लगे कि यहां क्वेश्चन की ब्रेनस्टॉर्मिंग है, वहां पे 5W1H मेथड लगा सकते हो, ठीक है। सपोज कि तुम्हें पीआरडी मिली, पीआरडी मिलके सीधे डिजाइन नहीं करने लगना है, पीआरडी अगर मिलती है तो प्रोडक्ट मैनेजर से, पीएम से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछने हैं कि अच्छा ये क्वेश्चंस हैं, डेटा फॉर्म में पूछ सकते हो, ठीक है। जैसे कि सपोज इफ आई वाज वर्किंग इन ई कॉमर्स फील्ड देन, और से आई वाज मेकिंग अ सीएस, कस्टमर सपोर्ट टिकटिंग टूल, सो आई आस्क व्हाट इज टिकटिंग टूल, how many people come per day to this ticketing tool, how many tickets are solved by this ticketing tool, who are the customer supports agent that are solving this, what is the ethnicity of those customer support agents, where are they typically from, ठीक है, what is the technical literacy of these customer support agents, ठीक है, is how many people make second ticket for their first ticket। इस तरीके से आई वुड आस्क क्वालिटेटिव एंड डेटा ड्रिवन क्वेश्चंस, ठीक है। आप 5W1H यू कैन यूज इन फर्दर थिंग ऑल्सो, जब आप जो है क्या नाम है डिज़ाइन प्रॉब्लम ख़त्म कर चुके हो एंड यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि इफ द प्रोडक्ट वॉज सक्सेस और नॉट, ठीक है, कि व्हाट वाज द रिटेंशन ऑफ दिस फीचर, ठीक है, हु आर द पीपल दैट क्लिक्ड ऑन द CTA टू मेक द पेमेंट बट डिड नॉट एक्चुअली डिड द पेमेंट, ठीक है। सपोज ही कोई पीएम आ रहा है और वो आपको डिज़ाइन देख रहा है, कह रहा है इसमें मज़ा नहीं आया, वाई आर यू नॉट फाइंडिंग द मज़ा, बिकॉज इट इज़ वेरी क्वालिटेटिव थिंग, ठीक है। तो वो कुछ कहेगा, ठीक है, कि इसमें दिवाली का है और दिवाली के कलर्स नहीं हैं, व्हाट आर द कलर्स ऑफ दिवाली, रेड और ब्लू होता है शायद, रेड और येलो होता है शायद, तो इसमें रेड और येलो नहीं है क्या, देयर इज रेड एंड येलो, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से, रंगोली बहुत लोग यूज करते हैं यार, वो नहीं है, ओके। इफ सो 5W1H मेथड यूज टू फ्रेम क्वेश्चंस, यहाँ पे गो एज एक्सटेंसिव एज यू कैन, ठीक है, यू विल that will help you get a deeper understanding. The more the questions, the smaller the questions, the bigger the questions, you will get more understanding or deeper understanding of the problem, ठीक है। So so this was it, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल फ्रेम द क्वेश्चंस। लर्निंग की एक टिप दे दे रहा हूँ, ठीक है, वॉच दीज वीडियोज पहली बार में, ठीक है, एंड देन इन द सेकेंड राउंड सिट विथ द पेन एंड पेपर और फिग्मा पे, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया, अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट के आपके जितने भी क्वेश्चंस थे वो आपने लिख लिए हैं, ठीक है। सो फ्रॉम नाउ टू बी, ठीक है, हम लोग रिसर्च की तरफ बढ़ेंगे कि इन क्वेश्चंस के जो आपने रिसर्च क्वेश्चन लिखे हैं इनके आंसर्स कैसे मिलेंगे, ठीक है। सो इफ़ यू आर ऑन फर्स्ट राउंड, मतलब फर्स्ट राउंड ऑफ वॉचिंग, गो टू द नेक्स्ट एपिसोड, और इफ़ यू आर ऑन द सेकेंड राउंड ऑफ री वॉचिंग इट, टेक द फिग्मा फाइल एंड राइट डाउन योर क्वेश्चंस, एंड देन फिर नेक्स्ट में मिलते हैं रिसर्च शुरू कैसे करनी है, ठीक है। कीप दिस इन माइंड, ये सीरीज़ पूरी ख़त्म कर लेना सो दैट तुम्हारे पास पहला प्रोजेक्ट हो जाए, ठीक है। डोंट थिंक कि अच्छा एक महीने बाद हो, एक महीना मैंने छोड़ दिया था तो अब मैं नहीं करूँगा, नहीं, कभी भी करो, ठीक है। एक महीने बाद करो, कुछ लोग एक हफ्ते में ख़त्म कर लेंगे अपना पहला प्रोजेक्ट, कुछ लोग को एक साल लग जाएगा, बट पहला प्रोजेक्ट ख़त्म करना, दिस विल गिव यू अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर सेल्फ एज वेल कि आप जो है यूएक्स में आना चाहते हैं या नहीं, एंड देन इट गिव्स यू सम कॉन्फिडेंस एज वेल, ठीक है। आप वो इनर्शिया ब्रेक हो जाएगा, इसीलिए ये बना रहा हूँ। सो यू विल ऑलवेज हैव द कॉन्फिडेंस कि मैंने एक प्रोजेक्ट तो बना लिया था, ठीक है। सो
This is Baby God of UX. I am God of UX. This is Utkarsh Shrivastava and you are the baby gods. ठीक है? Bye bye. Baby God of UX. Attack it up on my robot.